Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel Testa Tutorial. Dear learners, once again I am here with you all and for you all with another new interesting video on the topic telescope. So let's illustrate this optical instrument telescope. My dear students, if we are talking about simply a telescope, then we say a telescope is an optical instrument used to see distant bodies, distant objects, and these distant objects may be celestial bodies as well as terrestrial bodies. If we are talking about celestial bodies, then we can say the bodies like stars, planets, etc. And about the terrestrial body, then we can say bodies on earth like trees and mountains. So in this way, if we classify the telescope, then we can say telescope may be of following two types. First one, astronomical telescope, and second one, terrestrial telescope. Astronomical telescope is used to see heavenly bodies, and astronomical telescope forms virtual and inverted image of these heavenly bodies. As all the heavenly bodies are nearly spherical in shape, so it doesn't matter to have an inverted image of these celestial bodies. But if you're talking about terrestrial telescope, then it is necessary to form virtual and erect image by a terrestrial telescope. So in this way, terrestrial telescope simply does this thing. Here I mentioned optical telescope because we are studying about the telescope which is sensitive for the wavelength of visible light in the electromagnetic spectrum. There may be other kinds of telescopes too which are sensitive for other part of the electromagnetic spectrum, like X-ray telescope, like ultraviolet telescope, like radio telescope, etc. Now further, if we are classifying a telescope on the basis of the nature of the objective, then again we can say telescope may be of two types. First, refracting type telescope, and second one, reflecting type telescope. In a refracting type telescope, objective is a convex lens of large aperture and of large focal length, and in reflecting type telescope, objective is a concave mirror of large aperture and of large. Now let's have a detailed discussion on the astronomical telescope. तो अगर हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में बात करते हैं तो बहुत कुछ हमें यहाँ नया नहीं देखने को मिलेगा, जैसा कि हमने देखा था लास्ट केस में कंपाउंड माइक्रोस्कोप की केस में। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी हमने देखा कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ टू कन्वर्जिंग लेंसेज, कॉन्वेक्स लेंसेज. One has shorter focal length, shorter aperture, and other has long focal length, large focal length, and large aperture. Here the things are opposite. Means again, astronomical telescope consists of two convex lenses placed coaxially, one facing distant object in the same way as we defined in case of compound microscope called objective. But the difference is that objective has large aperture and large focal length. Other converging lens placed close to the eye called eyepiece has a small aperture and a small focal length. And these tubes means eyepiece tube can slide within the objective tube so that we can manage the distance between objective and eyepiece in order to change the position of the final image formed by the telescope. तो जैसा कि लास्ट टाइम हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में बात की थी, तो हमने वहां भी देखा था कि जो फाइनल इमेज बन रहा था उसके दो केसेस थे, व्हेन फाइनल इमेज इज एट डी एंड व्हेन फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी. सो अगेन same thing here, we are going to discuss very first case, magnifying power of a telescope when final image is formed at least distance of distinct vision. तो जैसा कि हमने लास्ट टाइम डिफाइन किया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, वैसे ही सेम डेफिनेशन हम थोड़े बहुत चेंजेस के साथ देने चल रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस के जस्ट सिमिलर टेलीस्कोप के केस में. तो हम सिंपली कह सकते हैं मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप इज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज एट डी when seen through the telescope to the angle subtended by the object situated at infinity when
seen through naked eyes. सो अगर इस केस में हम रे डायग्राम की बात करें तो इस केस में आप रे डायग्राम यहाँ पे देख सकते हैं. एक्चुअली ऑब्जेक्टिव हैज़ अ लार्ज अपर्चर एंड लार्ज फोकल लेंथ एज वेल, एंड इन केस ऑफ आई पीस हैज स्मॉल अपर्चर एंड स्मॉल फोकल लेंथ हेयर. सो अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फानाइट पे सिचुएटेड कंसिडर करें तो इन्फानाइट से जो भी रेज इंसिडेंट होती हैं ऑब्जेक्टिव पे एक्चुअली वो पैरेलल कंसिडर की जाती हैं. तो ये पैरेलल रेज जब भी ऑब्जेक्टिव पे फोकस होती हैं तो ऑब्जेक्टिव एक्चुअली इन रेज को अपने फोकल प्लेन पे कन्वर्ज करके एक रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है ऑब्जेक्ट का, जो कि पी डैश क्यू डैश के फॉर्म में आप देख सकते हैं. अब इस पी डैश क्यू डैश के रिस्पेक्ट में आई पीस जो कि ऑब्जेक्टिव के ट्यूब के अंदर स्लाइड हो सकता है, ऑब्जेक्टिव को हम इस इमेज पी डैश क्यू डैश के रिस्पेक्ट में कुछ ऐसा अरेंज करते हैं कि हमारा जो फाइनल इमेज बन रहा है फर्स्ट केस में वो बने एज अ पी डैश क्यू डबल डैश एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन from the eye. Since eyes are very close to the eyepiece, so the distance from eyepiece is equal to the distance from eye as well. तो अगर हम बात करें रे डायग्राम की तो सिंपली हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को इन्फाइनाइट पे कंसिडर करते हुए पैरेलल रेज को कंसिडर किया है. दिस पैरेलल रेज आर कन्वर्ज्ड एट द फोकल प्लेन of the objective as p dash q dash. This p dash q dash is the inverted and real image of the object situated at infinity. अब हमें सिंपली क्या करना है, इस p dash q dash के रिस्पेक्ट में आई पीस को कुछ ऐसे अरेंज करना है कि ऑब्जेक्ट p dash इमेज p dash q dash आई पीस के लिए जो ऑब्जेक्ट जैसा वर्क करने वाला है एक्चुअल में लाई कर जाए ऑप्टिकल सेंटर और आई पीस के फोकल लेंथ के बीच में. तो इस तरीके से जो फाइनल इमेज बनता है वो फाइनल इमेज सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनता है और हाईली मैग्नीफाइड बनता है एज पी डबल डैश क्यू डबल डैश. सो इन दिस केस हमारी जो आईज होती हैं वो हाईली स्ट्रेंड होती हैं, लेकिन हमारा जो मैग्नीफिकेशन होता है वो मैग्नीफिकेशन हाईएस्ट होता है. अगर हम अल्फा और बीटा की बात करें तो पैरेलल रेज ऑब्जेक्टिव के साथ जो भी एंगल क्रिएट करती हैं, अगर हम नेकेड आई से डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वही सेम इमेज ये पैरेललाइज आई के रिस्पेक्ट में भी फॉर्म करती हैं. तो पैरेलल रेज आई के रिस्पेक्ट में जो एंगल या प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट जो एंगल फॉर्म किए हैं उसी को एक्चुअली हम कंसिडर कर सकते हैं एंगल फॉर्म्ड by object when seen directly to the eyes. So this is the angle alpha subtended by the object at eye. और अगर हम ऑब्जेक्ट मीन्स बीटा की बात करें सो बीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज पी डबल डैश क्यू डबल डैश व्हेन सीन थ्रू द टेलीस्कोप. तो सिंपली पी डबल डैश क्यू डबल डैश जो भी एंगल फॉर्म कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में हम बीटा की वैल्यू भी देख सकते हैं. तो अगर अब हम डिफाइन करें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, अगर हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना चाहें मैग्नीफाइंग पावर को तो हम सिंपली लिख सकते हैं एम इज इक्वल्स बीटा ओवर अल्फा. ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस में कर चुके हैं. सो जो भी रेज होती हैं ये पैरेलैटिक रेज होती हैं, पैरेक्सियल रेज होती हैं. पैरेक्सियल रेज के केस में हम एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को जनरली स्मॉल ही कंसिडर करते हैं. तो उस केस में बीटा और अल्फा स्मॉल कंसिडर किए जा सकते हैं, और बीटा अल्फा अगर स्मॉल हैं तो उस केस में हम बीटा को टेन बीटा अल्फा को टेन अल्फा भी लिख सकते हैं. और अगर बीटा को टेन बीटा अल्फा को टेन अल्फा लिखते हैं तो टेन बीटा और टेन अल्फा की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं ट्रायंगल ओ डैश पी डैश क्यू डैश एंड ट्रायंगल ओ पी डैश क्यू डैश रिस्पेक्टिवली. तो अगर हम टेन बीटा लिखें सिंपली ट्रायंगल ओ डैश पी डैश क्यू डैश से तो हम लिख सकते हैं पी डैश क्यू डैश अपॉन ओ डैश पी डैश. इसी तरीके से अगर टेन अल्फा लिखें तो टेन अल्फा लिख सकते हैं पी डैश क्यू डैश ओवर ओ पी डैश. सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है ओ पी डैश ओवर ओ डैश पी डैश. एंड नेक्स्ट फॉर द आई पीस इफ वी अप्लाई एक्चुअल में अगर हम देखें ओ पी डैश एक्चुअल में है फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव का, लेकिन ओ डैश पी डैश एक्चुअल में इस रियल इमेज की जो कि ऑब्जेक्ट का रियल इमेज है कि डिस्टेंस है कहाँ से आई पीस से, हमें एक्चुअल में इस डिस्टेंस को एलिमिनेट करके एक फाइनल इमेज फाइंड आउट करना है मैग्नीफिकेशन के लिए, फाइनल मैग्नीफिकेशन के लिए. तो हमें ओ डैश पी डैश को एक्चुअल में इस इक्वेशन से मैग्नीफाइंग पावर की इक्वेशन से एलिमिनेट करना है. तो इस एलिमिनेशन के लिए हम
एक्चुअल में आई पीस को कंसीडर करते हुए लेंस इक्वेशन लिखते हैं। लेंस इक्वेशन अगर हम आई पीस के लिए लिखें तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं। और अब इस लेंस इक्वेशन पे अगर हम साइन कन्वेंशन के साथ जो क्वांटिटीज हमें गिवन है उन क्वांटिटीज की वैल्यू को पुट करें तो हम सिंपली लिख सकते हैं ओपी डैश एज लेफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेफ्ट ऑफ द लेंस है तो ओपी डैश को हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। इन द सेम वे डी को भी नेगेटिव कंसीडर करते हैं। वैल्यूज को रख के अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें 1/o डैश पी डैश मिलता है 1/fa प्लस 1/d। अगर इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में यूज करते हैं तो हमारा जो फाइनल मैग्निफिकेशन का रिजल्ट आता है वो एक्चुअल में आता है कैपिटल M इज इक्वल FO अपॉन FE 1 प्लस FE ओवर D। नाउ इफ वी टॉक अबाउट नेक्स्ट केस, that is magnifying power when image is formed at infinity. This case is also called normal adjustment because in this situation as image is at infinity so eyes are relaxed, means strand produced in eyes are nearly zero, means eyes are relaxed to see the image, that's why called normal adjustment. सो अगर हम नॉर्मल एडजस्टमेंट में इमेज फॉर्मेशन कराएं तो एक्चुअली हमें फिर से क्या करना है, लास्ट टाइम जो हमारा पी डैश क्यू डैश था, पी डैश क्यू डैश के रिस्पेक्ट में हमने आई पीस को कुछ इस तरीके से एडजस्ट किया था कि हमारा जो फाइनल इमेज बना था वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बना था। इसके लिए हमने पी डैश क्यू डैश को आई पीस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रख लिया था। लेकिन अगर हमें फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे फॉर्म कराना है, पी डैश क्यू डैश का इमेज हमें जो कि ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव कर रहा है आई पीस के लिए, अगर हमें इसका इमेज इन्फिनिटी पे चाहिए तो ऑब्वियसली पी डैश क्यू डैश को हमें आई पीस के फोकस पे रखना होगा, फोकल प्लेन पे लाना होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आई पीस को फिर से पी डैश क्यू डैश के रिस्पेक्ट में कुछ इस तरीके से स्लाइड करते हैं, एडजस्ट करते हैं कि पी डैश क्यू डैश आई पीस के फोकल प्लेन पे एग्जिस्ट करता है और उस केस में जो हमारा फाइनल इमेज बनता है वो इन्फिनिटी पे बनता है। सिचुएशन सेम है, पैरेलल रेज इनफाइनाइट से आ रही हैं, ऑब्जेक्टिव उनको कन्वर्ज करा देता है अपने फोकल प्लेन पे, फोकल प्लेन ऑब्जेक्टिव के फोकल प्लेन के रिस्पेक्ट में आई पीस को हम कुछ ऐसा एडजस्ट करते हैं कि ऑब्जेक्टिव का फोकल प्लेन और आई पीस का फोकल प्लेन दोनों एक ही पॉइंट पे लाई कर जाएं। तो इस तरीके से जो इमेज हमारा बना है वो इमेज आई पीस के फोकस पे आ जाएगा और आई पीस के फोकस पे ऑब्जेक्ट दैट इज पी डैश क्यू डैश के होने से जो हमारा फाइनल इमेज बनेगा वो इन्फिनिटी पे बनेगा। इस केस में जो हमारा मैग्निफिकेशन होगा वो एक्चुअल में प्रीवियस केस से कम होगा, लेकिन हमारी जो आईज होंगी वो रिलैक्स्ड होंगी, आईज में स्ट्रेंड नहीं होगा। हम क्लियरली, वैसे तो दोनों केसेस में हम डिस्टिंक्ट एंड शार्प इमेज ऑब्जर्व करते हैं, बट यहाँ पे रिलैक्स्ड वे में हम इमेज को देख सकते हैं। तो अगर इस केस में हम मैग्नीफाइंग पावर को डिफाइन करें तो डेफिनेशन सेम होगी थोड़ी से चेंजेस के साथ और कॉन्सेप्ट भी सेम है। तो अगर हम कहें मैग्नीफाइंग पावर हियर इन दिस केस तो सिंपली वी कैन से इट इज द ratio of angle subtended by the final image seen through the telescope situated at infinity to the angle subtended by the object seen directly at eyes. So यहाँ पे आपने लिखा बीटा अपॉन अल्फा इन द सेम वे जैसा कि लास्ट में आपने कहा। सो बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू फिर से हम उन्हीं ट्रायंगल्स को कंसीडर करते हुए ओ पी डैश अपॉन ओ डैश पी डैश फाइंड आउट किए और इस केस में ओ पी डैश एक्चुअली एफ ओ है और ओ डैश पी डैश ओ डैश पी डैश एक्चुअली ये एफ ई है। सो हमारा जो फाइनल मैग्निफिकेशन मिला वो मिला हमें कैपिटल एम इज इक्वल एफ ओ अपॉन एफ ई। तो अगर हम इस रिजल्ट को सिंपली देखें तो यहाँ से हमें ये दिखाई पड़ता है कि मैग्निफिकेशन विल बी एज मच लार्जर, मैग्निफिकेशन में बी हायर एंड हायर इफ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एफ ओ एंड वी डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एफ ई। दैट्स वाई we choose objective of large focal length and eyepiece of short focal length. So this is all what about we have to learn about the telescope. Thank you for watching the video. Please dear learners, subscribe the channel, like and share the videos. Thank you.